Very warm welcome to all of you. You're watching Inspire India here on Mirror Now. I'm Afrida Rahman Ali. We are going to talk about those Good Samaritans once again, to talk about how their humble efforts have gone a long way to those in distress. There are many among us who in their own small way is trying to help, making a big difference. Every small initiative at a time like this really adds up when the country is reeling under a crisis like this, without depending on what the government is doing or the administration or the civic body is doing or not doing. There are individuals who have taken it upon themselves to help out, to reach out to those in need, and they are doing it selflessly, tirelessly, on a regular basis, which is why we have put together this show called Inspire India, because those are the Indians who inspire all of us to do our bit for this country. So today we are featuring Suresh Mutua, who is a Chennai-based businessman. He'll be joining us shortly. He is the head of an organization called Jain International Trade Organization. They are doing tremendous amount of work in Chennai, pooling in resources. It is a resourceful company since they have businesses across multiple verticals. But throughout their journey as a business organization, they have also been helping out people. And this coronavirus and the pandemic has been completely an opportunity for this organization to reach out. Suresh Mutuaji will join us shortly. But before that, let's talk about Deep Khatri, who's already with us from Delhi. He's running an organization called Shri Bhagat Singh Youth Brigade. Deep Khatri is one of those individuals who were extremely pained to see the misery of the migrant workers. And when he saw it in front of his eyes, what these people are going through, he took the initiative to put together a group of people who would help out the migrant workers, who would give them their daily meals, who would give them their transport. Deep Khatri ji, शुक्रिया, गुड आफ्टरनून. आप हमारे शो में आए. आपकी जो कहानी है, जो आपकी इनिशिएटिव है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे. सबसे पहले आपके बारे में बताइएगा कि किस तरह से आपने शुरुआत की, क्यों शुरुआत की, कहाँ शुरुआत की. आपकी जो कहानी है इस पूरे जो आपने मुहिम शुरू किया है श्री भगत सिंह यूथ ब्रिगेड, उसके बारे में बताइए. मैम, ये 2009 से मैंने संस्था स्टार्ट की थी. ये मेरे दादाजी, मेरे ग्रैंडफादर हैं जो मिसिंग हो गए थे. उनके 96 एज थी. तो उनके जाने के बाद मैं बड़ा परेशान रहा था. तो मैंने लोगों की मदद करने के लिए एक संस्था बनाई, श्री भगत सिंह यूथ ब्रिगेड. और हम पुअर पीपल जो बच्चे हैं उनके लिए काम करते हैं. और अभी कोरोना के टाइम में 23 मार्च 2020 से हम लगातार जो माइग्रेंट लेबर है उनके लिए और जो कोरोना पेशेंट हैं उनके लिए हम वर्क कर रहे हैं. अभी तक 5-6 हजार लोगों तक हम अपनी सेवा दे चुके हैं, जिसमें फूड प्रोवाइड कराते हैं, राशन किट प्रोवाइड कराते हैं, एम्बुलेंस, और अभी जो 2 महीने से जो मारामारी चल रही है ऑक्सीजन की, तो हम ऑक्सीजन के सिलेंडर भी उनको प्रोवाइड कराते हैं विदाउट ऑफ कॉस्ट, फ्री में. एम्बुलेंस भी हम फ्री में देते हैं. जी जी. तो इतना सब कुछ करने के लिए काफी आपको मेहनत करनी पड़ी होगी, और काफी जो है ये जो रिसोर्सेज आपको जमा आप कैसे करते हैं, कहाँ से मैनेज करते हैं? ये कुछ मेरे साथी हैं, उनकी मदद से, कुछ मैं अपने पॉकेट से उनको करता हूँ. हमारी जो संस्था है वो कैश डोनेट नहीं लेती किसी से भी. हम बस लोगों से यही कहते हैं कि हम एक जरिया बन सकते हैं जरूरतमंद के, और जो जरूरत देने वाले लोग हैं उनके बीच में हम एक पुल का काम करते हैं, ताकि जिसको जरूरत चाहिए उस तक मदद पहुंच पाए, और जो मदद करने वाला लोग है वो सही लोगों तक है जो अपनी मदद दे पाए. तो उनके बीच में हम जरिया बनते हैं, और अपनी पॉकेट से जितना भी हम कर पाते हैं लोगों की मदद वो करते हैं. हमारी संस्था कोई डोनेशन नहीं लेती है. जी जी जी. तो आप एक जरिया बन गए हैं. ये बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि कुछ लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं और कुछ लोगों को मदद की ज़रूरत है, तो यू आर ब्रिजिंग द टू. आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो आपने नाम दिया है श्री भगत सिंह यूथ ब्रिगेड, दिस इटसेल्फ इज इंस्पायरिंग. आप इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे कहानी है जी, हम बचपन से ही है, जो भगत सिंह जी को हम पढ़ते हैं, उनकी जीवनी हमने पढ़ी है. तो उन्होंने अपनी 23 साल की जिंदगी में ही
देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो हम भी ये सोच रहे हैं कि उन्हीं की तरह हम इस मानव जीवन में किसी की मदद कर सकें। और मानव होने का नाता यही है कि हम कोई जरूरतमंद है जिसकी हम मदद कर पाए, भगवान ने इस लायक हम बनाए हैं तो हमें जरूर मदद करनी चाहिए। और इसके पीछे है जो श्री अभय सिंह संधू जी हैं, जो हमें प्रेरणा देते हैं। अभी उनका 15 मई को देहांत हो गया, उनकी आत्मा को प्रभु शांति दे। तो उन्हीं से हम उनके भतीजे थे भगत सिंह जी के, सरदार कुलबीर सिंह जी के लड़के थे वो, तो उन्हीं से हम प्रेरणा लेके वो ये सारी सेवा करते थे। उनके लड़के थे अभी तेज संधू जी, 4 साल पहले उनका भी देहांत होगा। तो भगत सिंह जी के परिवार से हम प्रेरणा लेते हैं, जैसे वो देश की सेवा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम जीते जी कम से कम किसी की मदद कर पाए। जी जी, आपका इंटेंशन ये है कि आप देश की सेवा करें, कि आप का जो पेट्रियोटिज्म है वो इससे झलकती है। बट मैं आपको ये भी पूछना चाहूंगी, आपने शो के शुरुआत में ही कहा कि आपके जो दादाजी है वो गुम हो गए थे, तो इस तरह का मैंने देखा है कि कई लोगों के साथ कुछ पर्सनल हादसे होते हैं। कुछ लोग तो उसी गम में जो है कुछ कर नहीं पाते, लेकिन कुछ आपके तरह होते हैं जो उस चीज से इंस्पिरेशन उनको मिलता है दूसरों के लिए करने के लिए। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? ऐसा ही हुआ हमारे साथ में भी। मैं सेवा तो पहले से ही करता हूँ, लेकिन संस्था बना के और लोगों को है जो सामूहिक रूप से जो मदद देने का काम है, ये 2009 से ही मैंने शुरू किया था। मेरे दादाजी 2009 में मिसिंग हो गए थे और उनकी एज 96 थी। तो मैंने 4 साल तक उन्हें ढूंढा, मिले नहीं, और उनसे इतना ज्यादा प्रभावित हुआ, जो मेरे काम धंधे थे वो मैंने बंद कर दिए और तब से मैं सेवा में ही लगा हूँ, कंटिन्यू सेवा ही कर रहा हूँ। और अभी जैसे कोरोना का जो समय आया था, उसमें अपनों ने अपने परिवार का साथ छोड़ दिया था। तो इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हम बहुत सारी जो परिवार ऐसे हैं कि जो अपने परिवार की बॉडी भी नहीं ले रहे थे, हम उनका अंतिम संस्कार भी करते हैं। उनके जो आखिरी इच्छा होती है कि जो अस्थियां हैं जो विसर्जित की जाए गंगा जी में, तो वो हम ब्रिज घाट ले जाके उनकी अस्थियां भी विसर्जित कराते हैं। और जो लोग जी रहे हैं जिंदगी में और पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो हम कोशिश करते हैं उनको खाना दे दे, उनको एम्बुलेंस की सुविधा दे दे। और जैसे अभी आपने देखा होगा, लोगों ने ब्लैक मार्केट कर ली थी। हमने 10 सिलेंडर है जो पंजाब से खरीदे थे आज से 1 महीने पहले, तो वो 10 सिलेंडर है जो आज तक है, जो हम जिसको भी सिलेंडर देते हैं उसको यही बोल के देते हैं कि जैसे बुरे वक्त में हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप भी किसी मजबूर की, दुखिया की आप मदद कर दीजिए। और ऐसा कर भी रहे हैं वो लोग जिनकी हमने मदद की है। तो अभी भी ऑक्सीजन के सिलेंडर 10 सिलेंडर का मतलब ये मान लीजिए आप, अभी तक 30 से 40 लोगों की हम जिंदगी ऑक्सीजन की वजह से बचा पाए हैं। वो हम नहीं बचा पाए हैं, वो आप जैसे आप हमें प्रेरित कर रहे हैं, आप हमें है जो 30 से 40 लोग आप कह रहे हैं आपने बचाया ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा के। इतने लोगों की आपने मदद की? हाँ जी, बिल्कुल की अभी तक। इसके लिए पूरे देश आपके शुक्रगुजार है, क्योंकि क्या है ना, हर चीज में हम जो सरकार पर सवाल उठाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि इतने बड़े देश में इतने सारे लोगों के लिए हर जगह सिविक बॉडी का पहुंचना या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पहुंचना कई बार नामुमकिन सा भी हो जाता है। तो इसलिए आप जैसे लोग जो ये काम कर रहे हैं, लोगों को जो ज़रूरतमंद है उनको उनकी जान बचाना, हाईली कमेंडेबल एंड ट्रूली इंस्पायरिंग आई मस्ट से। आई हैव टू आस्क यू, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी दीप खत्री जी, कि जो आपने कहा कि 2020 से आप ये काम करते आए हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गया। आपने मजदूरों के बारे में मुझे कहा था जब मैं आपसे बात कर रही थी शो से पहले कि काफ़ी वो बेबस थे। उस नजरिए के बारे में बताएं, क्या क्या देखा हुआ है आपने, फर्स्ट हैंड क्या देखा आपने? मैंने ये जो 24 तारीख 2000 मार्च को है जो लॉकडाउन की शुरुआत हो गई थी दिल्ली में, और मतलब मजदूरों को ये लग रहा था कि अब हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, और वो पैदल है जो अपने घरों की तरफ जाना चाह रहे थे। और सरकार ने है जो ना उनको रेल दी ना उनको बस दी, तो उनकी पीड़ा जो थी वो हमारे दिमाग में एक घर कर गई। तो हमने कोशिश की कि उनको हम किसी तरफ से है जो मदद दे सके। तो हमारे पास एक जगह है जिसमें हमने 300 मजदूरों को कम से कम 8 दिन के लिए है जो रखा, और उनका रजिस्ट्रेशन करा के फिर जैसे जैसे सरकार ने सहायता दी
तो सरकारी सहायता पहुंचने में कम से कम 15 दिन लग गए थे लोगों तक। एकदम से जो बंद किया गया था उसकी वजह से बहुत लोग परेशान थे और सब अपने घर की तरफ जाना चाह रहे थे। तो हमने कोशिश की उनको उस पलायन को रोकने के लिए। उनकी बहुत सारी समस्याएं थी कि मजदूर है वो किराए पे रहते थे। यहाँ हमारे यहाँ पे नरला एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे कम से कम 5 लाख के आसपास मजदूर है। तो वो सारे के सारे बेचारे परेशान थे कि मालिक जो थे मकान मालिक उनसे किराया मांग रहे थे। उनको तनख्वाह नहीं मिली थी, खाने के लिए कुछ था नहीं, उनके घर पे राशन नहीं था और ऑलमोस्ट मार्केट है जो बंद हो चुकी थी। तो ऐसे में हमारी संस्था ने उनके लिए खाना प्रोवाइड किया और रैन बसेरे की व्यवस्था की। और अब वो लोग हैं जो 1 साल बाद भी हमें फोन करते हैं, हमारा धन्यवाद करते हैं। तो उनका जो धन्यवाद हमें मिलता है तो उससे ही हम मोटिवेट होते हैं, हमें बड़ी ऊर्जा आती है। तो हम उसी एक धन्यवाद की वजह से हम कोशिश करते हैं कम से कम 10-20 लोगों की और मदद कर सकें। जी यस, दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ स्टोरी। इस तरह की जो कहानी है इससे हम लोग सारे लोग प्रेरित होते हैं ये देख के कि जो सही मायने में देश की सेवा करते हैं आप जैसे लोग, उसके वजह से आज आपने कहा कि 40 लोग आज जिंदा है, शायद इसी वजह से क्योंकि आपने उनको टाइम पे एक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा दिया। समथिंग ऑफ समथिंग टू रियली थिंक अबाउट दैट हाउ विद अ स्मॉल एफर्ट वी कैन डू वंडर्स। दीप खेत्री जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे शो पे आने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने जो दूसरे जो गेस्ट है आज हमारे साथ, सुरेश मुठवा इज विद अस। He is from Chennai. He runs a business in his normal profession. He is a businessman who runs multiple different businesses. He's also an exporter. Mr. Muthwa, good afternoon. I'm sorry we could not connect to you via video, so I assume you are on the phone line with us. I want to ask you to begin with that, you have a packed schedule, you have large businesses. You were telling me that in ordinary times, this is not what you do, but this is something that you have taken upon yourself, seeing the kind of distress around you. Now, I want to specifically ask you, in Chennai, what is the kind of initiative that you have started and which are the kind of services that your organization, the JN International Trade Organization, is helping out with? Thank you. Well, I mean, ever since I graduated and I got into my family business, I was happily, like anybody would do, learning and earning and enjoying my life. And just when then the floods in Chennai happened, that's what inclined me to social service. And I joined this organization called JITO, which is Jain International Trade Organization, which is a pan-global organization of Jains. Here, Jains who are businessmen, industrialists, professionals, bureaucrats, politicians, all have come under one common platform with an exclusive objective of service and education and economic empowerment of the downtrodden. So this is my first social organization, and what intrigued me to join this is that while you are earning and you are learning, the returning aspect was missing in my life. So, learn, earn, and return. The return is what is the most satisfying thing, and JITO is exactly doing that, ma'am. And as far as what we are doing in the service, like I said, during the floods, JITO, it's a nice acronym. Even though it works out to JN International Trade Organization, but it's also JITO. It's also to win, isn't it? Absolutely. I mean, though the English abbreviation of JN International Trade Organization is JITO, but what it means in Hindi is JITO, which means win. Win over all the difficult times, win over all the, the pandemics or the epidemics that can come across our lives. So any experience that you want to share, because yes, carry on, please. So I was just talking about the floods in Chennai. So, the making use of the extensive network of members and the chapters that we have been able to create, we were able to gather the required resources, and we were able to distribute about 2 lakh blankets, which was then the need of the hour. People were along the coast of Chennai, people were completely homeless, and they did not have a shelter to stay, and the blanket was the most needed item. So I mean, at that time
I was on the ground doing it along with all the other volunteers of this organization, and that inspired me to, completely remain. And today I am heading this organization as the national president. And even during this pandemic, all Okay. our chapters, we have 67 chapters across the country, 23 chapters overseas. Everybody has come on the ground to really do whatever they can within their capacity. So this is what Jito is doing. And, we have started Oxygen on Wheels, which is one of the most innovative thing that we have done, because what Yes, we sir. realized was there were, queues of these ambulances which were parked outside the major hospitals of Chennai, which is when this idea struck to us. They were waiting outside because they were not able to get a bed inside the hospital, and because of that, all these Yes. I want to, for ambulances- the sake of our viewers, Mr. Mutua, just elaborate on this. What the viewers are looking at and what you're explaining to us is that this is a bus where people, as if you can say this is some sort of a mobile hospital where people are seated and they are actually on oxygen supply. As you will see, people are seated inside the bus. There is no place in the hospitals. This is a quick fix solution that Mr. Mutua and his team has thought about, that you can have these buses, people can come in, those who need an oxygen cylinder, they don't necessarily always need to lie down. So there is a maximizing of the space available, and this whole idea, Mr. Mutua, must have worked wonders, because at one point the demand was so big and the space crunch was so high that something like this must have really helped out a lot of people. Absolutely. There was a complete, the stress and overwhelmed medical infrastructure. All the doctors, the hospitals, the paramedic staff, the nurses, the ambulances were all working round the clock, non-stop. And yet they were not able to cater to the patient's demand. And all the Yes. ambulances, while they were having the patients inside, they were stuck and they were engaged with those patients only. While so this concept, this innovative idea that came to us, that we should create an intermediate care facility for Yes. the patients, so that when the patients arrive the hospital, instead of them waiting in the ambulances, they can easily hop onto our buses. Because these buses, what we did was we modified them, creating an oxygen bank inside, oxygen concentrators. Each buses had 6 oxygen concentrators, the basic necessary medication. And what we also did is we tied up with these hospitals so that they provided the trained medical staff in each of these buses, so that they could attend to those patients who were in dire need of this oxygen till the time that they could get a bed inside. So thereby we were able to ease a lot of pressure. That's from why we this say medical- a small change can make a big difference. But then you need to have that kind of an innovative mindset which you have, Mr. Mutua, and that has helped so many people. दीप खत्री जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि कई बार जो है एक आइडिया ही काफी होता है बहुत लोगों की मदद के लिए. आपने भी मुझे कहा कि कुछ मजदूरों को जो आपने वाहन दिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, जब आप उनकी हालत आप देख रहे थे, तो ये वाहन आपने कैसे और कहां से आपने ऑर्गेनाइज किए? मैम, अभी ये वाहन जो है ये कुछ दोस्तों की पर्सनल गाड़ियां हैं और कुछ वाहन जो है हमने रेंट पे लिए हैं. तो एम्बुलेंस के लिए भी, और अभी जैसे अभी दिल्ली में भी मारामारी चल रही थी, एम्बुलेंस है जो 10 किलोमीटर के भी 10-10 हजार रुपए ले रहे थे. तो हमने अपनी जो पर्सनल गाड़ियां हैं, आर्टिका, इनोवा, उनकी सीटें निकाल के तो उस पे हमने वेल्डिंग करा के है जो टेम्परेरी एम्बुलेंस बनाई थी. तो उसकी वजह उसकी वो जो अपनी पर्सनल गाड़ियां थी वो भी हमने लोगों को प्रोवाइड कराई, जिससे है जो बहुत सारे लोगों को मदद मिली. और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एक कोशिश है, आदमी जब दिल से कुछ कोशिश करे किसी की मदद करने की, तो बहुत सारे लोग हैं जो उनकी मदद करेंगे, साथ में आएंगे. जैसे अभी हमारे यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है दिल्ली का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वहां पे स्ट्रेचर नहीं थे कोरोना के पेशेंट को उठाने के लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था. तो हमने खालसा एड है, बड़ी इंटरनेशनल संस्था है, तो उनसे हमने मदद मांगी, तो उन्होंने हमें तुरंत स्ट्रेचर दिए और हमने हॉस्पिटल में दिए. अब वो लोग जो कोरोना पेशेंट हैं वो उस स्ट्रेचर से, एम्बुलेंस से है जो हॉस्पिटल तक अंदर आ जा सकते हैं. तो एक कोशिश करने की जरूरत है और मोटिवेशन है जो. तो एक अर्जेंसी को आपने समझा. जी.
तो ये जी, उस अर्जेंसी को आपने समझा. And the same thing with you, Mr. Muthwa, as well, that that's the spirit, isn't it? When you want to do this, where there's a will, there's a way. And the fact that when you really want to do it, somehow or the other, you find the means to do it as well, just like Mr. Khatri did and just like you did. Can you tell us how you kind of came upon or chanced upon this idea that we can use these buses for this purpose? Yeah, so as they say that need is the mother of all invention. So, whenever situations like this arises, a little bit of a thought process of what is needed, if we are able to brainstorm on that. And so this is how gives birth to a lot of these innovative ideas. And this is exactly what has happened to our bus, Oxygen on Wheels. These buses were also of no use because these are buses owned by these educational institutions run by our organization. And all the schools are closed. So, these buses were available, members were available, all the required resources were available. So we just had to, sort of innovate this idea. And in creating this Oxygen on Wheels, in each bus we created 6 oxygen. And created also comfortable atmosphere inside by placing a cooler and fans inside because these patients are already distressed. And unless we provide this kind of a very comfortable atmosphere inside these buses, it will be very difficult for them to stay for a longer period of time because, as you know, the beds were simply not available and the oxygen was completely scarce. And not only this, yes, and a bed, like you just pointed out, and what we've just realized is not always necessary. One can make do with this, and that is why what you highlighted is important, that make do with the available resources, and so nicely put that yes, necessity is the mother of invention. Deep Khatri ji, ये आपने भी सुना होगा जो हम लोग बहुत कहते आए हैं कि जुगाड़, कई बार जुगाड़ बहुत अच्छा काम आ जाता है ऐसे परिस्थितियों में. मैं आपको बता दूं, इस कोरोना बीमारी में है जो बहुत सारे ऐसे आविष्कार हुए हैं जिनको आप जुगाड़ बोल सकते हैं और उनकी वजह से ही है जो बहुत सारे लोगों को मदद मिली है. अभी आपने देखा होगा ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर एक किट लगती थी तो बहुत सारे लोगों ने उसका ब्लैक कर लिया. वो मिनिमम 800 रुपए की है. उसको भी लोगों ने है जो 8,000 रुपए में बेचा है. जो ब्लैक मार्केट करने वाले कुछ 1% लोग भी नहीं है वो जो भी है. तो उसमें भी है जो जुगाड़ किया गया है. इंजेक्शन से आपने भी देखा होगा बहुत सारी वीडियो उसकी है वायरल हुई थी. तो लोगों को जब जरूरत पड़ी जब कोई जरूरत पड़ती है तो कोई ना कोई उस समस्या का है जो समाधान बन के आ ही जाता है. कोई जुगाड़ आ जाता है, टेम्परेरी रूप से आ जाता है. लेकिन इसमें हमने भी देखा कि लोगों ने है जो दिल खोल के मदद की है. और जहां सरकार ठीक है उनका समय लगता है लेकिन समाज सेवी संस्थाएं जितनी भी है उन्होंने बहुत अच्छी है जो मदद की है लोगों की. और ऐसे वक्त में जब बिल्कुल दीप खत्री जी, यही हम देख रहे हैं आज कि कुछ जैसे आपने कहा ऐसे लोग हैं जो ऐसे सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, होर्डिंग ब्लैक मार्केटिंग करके कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, और कुछ है आप जैसे लोग जो प्राइवेट व्हीकल को भी बेच के जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स मुहैया कराते हैं. तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि आप जैसे लोगों की तादाद बढ़े और देश इस मुश्किल हालात से निकले. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दीप खत्री जी, और थैंक यू सो मच मिस्टर सुरेश मुथवा जी फॉर जॉइनिंग अस ऑन इंस्पायर इंडिया टुडे. Well, that's it for now. News and updates continue on the other side. Stay with Mirror now.